مجھے یہ نہیں کھانا، مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، ثانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ ثانیہ کی بات سن کر اس کی ماں نے اسے غصے سے گھورا۔ اگر تم ایسی حرکتیں کرتی رہی تو میں تمہیں ایک دن واپس بھیج دوں گی۔ امی کی بات سن کر ثانیہ نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ کہاں پر بھیجنے کی بات کر رہی ہیں؟ جب بھی میں کوئی ضد کرتی ہوں آپ ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ میں تمہیں واپس بھیج دوں گی۔ راشدہ بیگم یکدم خاموش ہو گئی اور پھر ثانیہ کو دوبارہ اشارہ کرنے لگی کہ وہ پھل کھا لے۔ ثانیہ نے ایک نظر اپنے سامنے پڑے ہوئے پھلوں کی ٹوکری پر ڈالی جو سرخ رنگ کے گول گول بیری کی طرح کے تھے، لیکن ان کا ذائقہ بیری سے بہت مختلف تھا۔ نہ جانے کیوں ثانیہ کو یہ پھل شروع سے ہی پسند نہیں تھا، جبکہ ثانیہ کی ماں ہر مہینے اسے یہ پھل کھلاتی تھی اور یہ پھل وہ اسے ایک مخصوص وقت پر کھلاتی۔ ثانیہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے، لیکن بدلے میں راشدہ بیگم اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ ثانیہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پھل کھا لیا، لیکن پھل کھاتے ہی اچانک اس کا سر چکرانے لگا۔ ہمیشہ ہی اس کے ساتھ ایسا ہوتا، اور پھر اس کے ذہن میں کچھ واقعات گھومنے لگے۔ یہ واقعات ماضی کے تھے۔ ثانیہ کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا ایک ایک منظر لہرا رہا تھا، اور پھر یکدم ہی اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ وہ گہری نیند سو گئی۔ راشدہ بیگم نے ایک نظر سوئی ہوئی بیٹی پر ڈالی اور اس کے ماتھے پر پیار کر کے دوبارہ کمرے سے باہر نکل گئی، جہاں پر ان کا شوہر پہلے سے ہی موجود تھا۔ نہ جانے اس وقت کیا حال ہوگا جس دن ثانیہ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم لوگ اس کے اصل ماں باپ نہیں ہیں۔ یہ تو پھر ایک معمولی سی بات ہے۔ اگر اسے یہ پتہ چل گیا کہ ہم لوگ جنات ہیں تو نہ جانے وہ کیسا برتاؤ کرے گی۔ مجھے تو وہ وقت سوچ کر ہی خوف آ رہا ہے۔ ثانیہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میں اسے کھونے کا رسک نہیں لے سکتا۔ جب بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ مجھ سے جدا ہو جائے گی، اس وقت میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ عابد دوبارہ سے دکھی ہو گیا تھا۔ راشدہ بیگم نے جلدی سے اپنے شوہر کو تسلی دی اور کہنے لگی، فکر مت کریں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ چند دن یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ ثانیہ جنگل میں بنے اس گھر میں رہ رہ کر تھک چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی باہر کی دنیا دیکھے، لیکن اس کے والدین اسے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتے اور ہمیشہ ہی اسے یہ وعدہ کرتے کہ ایک دن وہ اسے اپنے ساتھ تمام رشتہ داروں سے ملوانے کے لیے لے جائیں گے۔ لیکن یہ وعدہ وہ اسے پچھلے 15 سال سے کر رہے تھے۔ ان 15 سالوں میں ثانیہ نے اپنی زندگی مختلف کتابیں پڑھنے اور گھر کے کام کاج کرنے میں گزاری، اور پھر ایک دن وہ وقت بھی آ ہی گیا جب ثانیہ کے والدین بے چینی سے گھر کے اندر داخل ہوئے اور کہنے لگے، چلو ہمیں جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ والدین کی بات سن کر ثانیہ حیران ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا دل خوشی سے اچھلنے لگا تھا۔ وہ سوچنے لگی تھی، یعنی وہ وقت آ ہی گیا ہے جب وہ اس گھر سے باہر نکلے گی اور باہر کی دنیا کو دیکھے گی، وہ دنیا جو وہ ہمیشہ کتابوں میں پڑھتی آئی ہے۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنے والدین کے ساتھ پیدل چلنے لگی، لیکن راستے میں اچانک ہی اس کی ناک سے ایک بو آ کر ٹکرائی، جس سے اس کا سر چکرانے لگا اور وہ لہرا کر زمین پر گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں موجود تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ کمرہ تھا۔ اس وقت وہ اس کمرے میں اکیلی تھی۔ وہ اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھی اور دماغ پر زور دینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ذہن میں گزشتہ واقعات گھومنے لگے۔ اس کا دھیان تیزی سے اپنے والدین کی طرف گیا۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر بھاگی، لیکن یکدم ہی قدم رک گئے، کیونکہ اس کے والدین وہاں پر باقی اور لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں سے چند خواتین اور چند مرد تھے۔ اس کے علاوہ وہاں پر اور جوان لڑکے لڑکیاں بھی موجود تھے۔ وہ سارے بہت ہی پیارے اور حسین تھے۔ ثانیہ نے اس قدر خوبصورت لوگ اپنی ساری زندگی نہیں دیکھے تھے۔ وہ ان لوگوں کو دیکھ کر خوش بھی ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہچکچا بھی رہی تھی۔ وہ چند لمحے اسی جگہ پر کھڑی رہی، جبکہ دوسری طرف ثانیہ کو دیکھ کر وہاں بیٹھے چند لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جبکہ چند لوگوں کے چہرے لٹک گئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ثانیہ کو پسند نہیں کرتے تھے اور ثانیہ کو اپنے ساتھ رکھنے پر سخت خلاف تھے۔ اچانک ثانیہ کی والدہ بولی، بیٹا وہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ آؤ میں تمہیں تمہاری خالہ ماموں سے ملواتی ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے ثانیہ کا سب سے تعارف کروایا۔ ثانیہ بہت ہی پرجوش تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد
वहाँ पर बैठी लड़कियों से सानिया की दोस्ती हो गई, जिनमें से 2 लड़कियाँ सानिया से हंसी खुशी बात कर रही थी, जबकि एक लड़की मुंह बनाकर बैठी हुई थी। सानिया ने ये बात बहुत अच्छे तरीके से नोट की। उसने दोबारा उस लड़की को मुखातिब करने की और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की का रवैया बहुत ही बुरा था। इसी वजह से सानिया पीछे हट गई। बाकी दोनों लड़कियों ने भी सानिया को यही कहा कि उसका मूड ख़राब है, इसी वजह से वो ऐसा बर्ताव कर रही है। जबकि उस लड़की की नज़रों से सानिया को एहसास हो गया था कि वो सानिया को पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ सानिया बहुत खुश थी। उसे शुरू से ही बहुत सारे लोगों में रहना पसंद था और अब उसकी ये मुराद भी पूरी हो गई थी। जब तक सानिया वहाँ पर बैठी रही, वो अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपश को महसूस करती रही। यूँ लग रहा था जैसे उसे कोई घूर रहा हो। सानिया ने 2-3 बार नज़र उठाकर देखा, लेकिन उसे कोई भी अपने आप को देखता हुआ दिखाई न दिया। फिर अचानक से सानिया की नज़र अपने दाएं जानिब बैठे एक लड़के पर पड़ी, जो अपनी नीली आंखों से सानिया को देखे जा रहा था, और वो ये अमल बग़ैर किसी हिचकिचाहट और शर्म के कर रहा था। उसे ये भी एहसास नहीं था कि अगर कोई उसे यूं सानिया को देखता हुआ देखेगा तो ना जाने क्या सोचेगा। सानिया की जब उससे नज़र मिली तो सानिया का दिल ज़ोर से धड़का। उसने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली और अपने दिल की धड़कन को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। ऐसा सानिया के साथ पहली बार हुआ था। सानिया ने उस अमल को ये कहकर ख़ुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि शायद वो पहली बार लोगों से मिल रही है, इसीलिए उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद सानिया ने अपने बाकी कज़नों से भी बात की, लेकिन दोबारा सानिया के साथ ऐसा नहीं हुआ। अब सानिया को हैरानगी होने लगी। सानिया ने बहुत सी किताबों में पढ़ा था कि नज़र का मिलना, दिल का धड़कना मोहब्बत की निशानी होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद सानिया की ये गलत फहमी भी दूर हो गई जब उसने सानिया से इंतहाई सख्त लहजे में बात की और उसे वहाँ से चले जाने का कहा। दरअसल सानिया बाहर खड़ी अपने बाकी तमाम कज़नों से बातें कर रही थी, जिनमें से कुछ लड़के थे और कुछ लड़कियाँ थीं। वो बहुत शौक़ से सानिया की बातें सुन रहे थे, क्योंकि सानिया बहुत अच्छा बोलती थी और इसके साथ साथ वो काफ़ी मासूम भी थी। उसकी मासूमियत उसके चेहरे से झलकती हुई नज़र आती, लिहाजा वो थोड़ी ही देर में सानिया के करविदा हो गए। सानिया भी उस तमाम बात को नज़रअंदाज की अपनी ही कहे जा रही थी और जोश से जंगल में गुजरते हुए वक्त के वाक़यात सुना रही थी, जब अचानक वहाँ पर वही नीली आंखों वाला लड़का आ गया। जब उसने सानिया को उन लड़कों के साथ खड़ा देखा तो उसका पारा एकदम हाई हो गया। वो तेज़ी से सानिया के पास गया। वो देख सानिया को रहा था, लेकिन वो बाकी दूसरे लड़कों से बात कर रहा था। नीली आंखों वाले लड़के ने दूसरों से कहा कि तुम लोगों को अंदर खाने के लिए बुला रहे हैं, इसलिए चलो। इससे पहले कि सानिया के कज़न उसे अपने साथ लेकर चलते, उसने उनको मना कर दिया और कहा कि मुझे इसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मैं इसे थोड़ी देर बाद अपने साथ ही लाऊंगा। उसकी बात सुनकर जहाँ बाकी सब हैरान हुए, वहीं सानिया भी हैरान रह गई। उसके गाल यकदम ही लाल होने लगे और उसने अपनी नज़रें झुका लीं। सानिया की यह हालत उसके एक कज़न ने देख ली थी, लिहाजा सानिया पर जुमला कसा जो चंद ही लोगों ने सुना। सानिया को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी थी, इसी वजह से वो उसकी इस बात से बिल्कुल अनजान थे। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने तमीज़ नहीं सिखाई कि जनजादू के झुरमुट में खड़े होकर यूं हंस हंस कर बातें नहीं की जाती? उसकी बात सुनकर सानिया की सांसें यकदम ही रुक गई और वह हैरानगी से उस खूबसूरत नीली आंखों वाले लड़के को देखने लगी। उस लड़के को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो उसका शक सानिया को दिलाए बगैर ही अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगा, बेहतर यही है कि तुम इन लड़कों से दूर रहो और इनसे ज़्यादा बातचीत मत करो, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर मुनासिब नहीं समझी जाती। जब सानिया ने देखा कि वो नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा है, तो उसे यही लगा कि अल्फाज का चुनाव करते शायद उस लड़के से गलती हो गई थी, लिहाजा वो दोबारा से पुरसुकून हो गई। वो लड़का भी सानिया को पुरसुकून देखकर पुरसुकून हो गया। सानिया जल्दी से उससे माजरत करने लगी और कहने लगी, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। दरअसल मैं पहले कभी इस घर से बाहर निकली नहीं और ना ही मैंने इससे पहले कभी किसी से बातचीत की है, लेकिन आप फ़िक्र मत करें, मैं जल्द सब कुछ सीख जाऊंगी। सानिया ने धीमा सा मुस्कुराते हुए कहा। सानिया की बात सुनकर वो लड़का दोबारा पुरसुकून हो गया और सानिया को लेकर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ सानिया यहाँ पर आकर बहुत खुश थी, लेकिन उसके साथ साथ वो बेचैन भी थी।
نہ جانے کیوں سے ہر وقت یہی محسوس ہوتا رہتا کہ کوئی اسے دیکھے جا رہا ہے یا کوئی اسے پکار رہا ہے۔ اس بات کا ذکر ثانیہ نے اپنی کزن سے کیا تو اس کی اس بات کو مذاق میں لیا اور کہنے لگی، ہم ہی سب سے بڑے جنات ہیں، ہم سے بڑا جن یہاں پر کون ہو سکتا ہے؟ ثانیہ نے ایک گہری سانس لی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، یہ لوگ بار بار جنات کا ذکر کیوں کرتے ہیں اور خود کو جنات کیوں کہتے ہیں۔ ثانیہ کی کزن نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بات سن کر ثانیہ کسی گہری سوچ میں چلی گئی تو اس نے جلدی سے ثانیہ کو ہلاتے ہوئے کہا، ارے لڑکی، میں مذاق کر رہی ہوں، میری بات کو حقیقت میں مت لینا۔ اس کے بعد وہ ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ ثانیہ پیچھے تنہا کھڑی رہ گئی۔ اسے وہاں کھڑے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اسے دوبارہ اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بوڑھی عورت اسے پکار رہی ہو۔ یہ آواز بہت ہی نخیف سی اور کمزور تھی۔ ثانیہ نے پہلے تو اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب آواز مسلسل آنے لگی تو ثانیہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی اور جہاں سے آواز آ رہی تھی اس طرف جانے لگی۔ وہ ایک پرانا اور بند کمرہ تھا۔ جب وہ یہاں پر آئے تھے تب اس کی ماں نے اسے ہدایت کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے اس کمرے میں نہیں جانا، لیکن آج ثانیہ اس کی اس ہدایت کے خلاف جا رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی ایک بہت ہی گندی بو نے اس کا استقبال کیا، جس کی وجہ سے ثانیہ کے سر میں درد ہونے لگا۔ ثانیہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ کمرے کے درمیان جا کر کھڑی ہوئی کہ دروازہ پیچھے سے بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ثانیہ مزید ڈر گئی۔ اب اس کی نظر سامنے رکھی ہوئی کرسی پر پڑی جہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی اور ثانیہ کو دھیمی آواز میں پکارے جا رہی تھی۔ ثانیہ کی نظر جب فرش پر پڑی تو اس کے منہ سے چیخیں نکل گئیں، کیونکہ فرش پر جگہ جگہ خون بکھرا ہوا تھا۔ وہ اس بوڑھی عورت سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ اس کی بات سن کر بوڑھی عورت کی خوفناک ہنسی پورے کمرے میں گونجی۔ ارے لڑکی، تم تو بہت معصوم ہو، تمہیں تو ابھی کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ تمہاری ماں پہلے ہی تمہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر چکی ہوگی۔ کیا مطلب ہے؟ تم کس حقیقت کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ مجھ سے صاف الفاظ میں بات کرو۔ ثانیہ نے اپنے لہجے کو مضبوط رکھتے ہوئے کہا، لیکن اندر سے وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اچانک وہ بوڑھی عورت ثانیہ کی طرف پلٹی۔ بوڑھی عورت کے چہرے کو دیکھ کر ثانیہ کو لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ بہت ہی ڈراؤنا چہرہ تھا، جس کی آنکھوں کی بجائے گول گول گڑھے تھے، جبکہ اس کے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے جہاں سے خون ٹپک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ثانیہ آنکھیں بند کر کے اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور مدد کے لیے پکارنے لگی۔ دوسری طرف جب ثانیہ کی چوہوں کی آواز پوری حویلی میں گونجی تو سب لوگ پریشان ہو گئے۔ نیلی آنکھوں والا لڑکا تیزی سے بھاگتا ہوا اس کمرے کی طرف گیا جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی۔ اسے کسی حد تک اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ کیا ہو چکا ہے۔ وہ تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا ثانیہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ اس کو روتے دیکھ کر نیلی آنکھوں والے لڑکے کو کچھ ہوا۔ وہ تیزی سے ثانیہ کے پاس گیا اور اسے گلے لگا لیا۔ وہ اسے تسلی دینے لگا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ثانیہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور ایک ہی بات کہی جا رہی تھی کہ یہاں پر ایک بوڑھی عورت تھی اور یہاں پر خون تھا۔ وہ بوڑھی عورت کوئی انسان نہیں تھی بلکہ وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ ثانیہ کی بات سن کر جن ذات نے اپنے پاس کھڑی دوسری لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے اشارہ کرتے ہی اس لڑکی کا روپ بدل گیا۔ اب وہاں پر لڑکی کے بجائے ایک بوڑھی عورت کا روپ تھا۔ لڑکے نے ثانیہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ بوڑھی عورت نہیں بلکہ وہ ہماری کزن ہی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ جبکہ اس وقت ثانیہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی، لیکن پھر جن ذات کے بار بار کہنے پر اس نے گردن گھما کر دیکھا تو وہاں پر اب وہی بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر ثانیہ نے دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ جن ذات نے دوبارہ اس کا رخ اپنی کزن کی طرف پھیرا جہاں پر وہ ساری کھڑی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک ماسک اٹھا رکھا تھا۔ یہ اسی عورت کا چہرہ تھا جو اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھی تھی۔ وہ ماسک دیکھ کر ثانیہ کی حالت تھوڑی سی بہتر ہوئی۔
और फिर थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो गई। अहमद उसे अपने साथ लेकर बाहर निकल आया और फिर उसने अपनी नज़र अपने पीछे मौजूद कमरे पर डाली जहाँ वो बूढ़ी औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। अहमद ने दांतों को पीसा और सोचा कि वो बाद में उसका हिसाब लेगा। फिर वो सानिया को लेकर उस कमरे में चला गया और उसे तसल्ली देने लगा कि सब ठीक है। रात का वक्त था। सानिया अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी। उसकी नज़रों के सामने अभी दिन का वाक़या घूम रहा था जब उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके बिस्तर के नीचे कोई शे हो जो हिल रही हो। यह ख्याल आते ही सानिया का पूरा वजूद खौफ से कांपने लगा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बिस्तर से उठकर नीचे उतरते या बिस्तर से नीचे झांक कर देखती कि आखिर वहाँ पर क्या है। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इन्हीं सोचों में मगन थी जब उसका बेड अपनी जगह से उठा और फिर दोबारा से ज़मीन के साथ जा लगा। ये देखकर सानिया की हिम्मत जवाब दे गई और वो तेज़ी से बिस्तर से नीचे उतरकर बाहर भागने लगी कि अचानक उसका पाँव मुड़ा और वो मुंह के बल ज़मीन पर गिर गई। वो उसी हालत में थोड़ी देर ज़मीन पर पड़ी रही। उसका पूरा जिस्म अब दर्द करने लगा था। वो उठने ही लगी थी जब उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका पाँव पीछे से पकड़ लिया हो। ये ख्याल आते ही उसकी आंखें खौफ से खुल गईं। वो डर के मारे पीछे भी नहीं देख रही थी और दिल ही दिल में ये दुआ कर रही थी कि काश ये सब कुछ हकीकत ना हो बल्कि एक ख्वाब हो। लेकिन ये ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत थी। सानिया ने जब डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नज़र अपने पाँव से लगे हाथ पर पड़ी। वो कोई जला हुआ हाथ था जिसके बड़े बड़े नाखून थे। वो किसी इंसान का हाथ बिल्कुल मालूम नहीं हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो किसी वहशी मखलूक का हाथ हो। उसने ये हाथ पहले भी एक बार देखा था लेकिन तब उसने ये हाथ अपने ख्वाब में देखा था। और फिर उसके बाद एक दफ़ा जब वो टीवी पर कोई फिल्म देख रहे थे तब वहाँ पर उसे यही हाथ दिखने को मिला था, जबकि बिस्तर के नीचे यूं लग रहा था जैसे कोई स्याह रंग की चीज़ मौजूद हो। सानिया ने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा और आगे की तरफ ज़ोर लगाने लगी और अपने पाँव को छुड़वाने लगी। उसने 2 बार कोशिश की। जब उसकी टांग पीछे की तरफ खींचने लगी वो हाथ अब उसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींच रहा था। सानिया ने खौफ से अपनी आंखें बंद कर लीं इससे पहले कि वो बिस्तर से नीचे जाकर उस हाथ के हाथों तबाह हो जाती। अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई उस कमरे का मंजर बदल गया। अब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। ये देखकर सानिया की हैरत की इंतहा न रही कि अब वो ज़मीन पर नहीं बल्कि अपने बिस्तर पर लेटी थी और कमरे का माहौल भी बिल्कुल नॉर्मल था। अब वहाँ पर ना तो बेचैनी फैली थी और ना ही उसका बिस्तर हिल रहा था। सानिया को चंद लम्हों के लिए तो समझ ही नहीं आया कि अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या हुआ था। अचानक उसका ध्यान दस्तक की तरफ गया जो अब दूसरी बार हुई थी। सानिया तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागी और दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही अहमद खड़ा था जो मुस्कुराती नज़रों से सानिया को देख रहा था। उसकी नीली आंखों को देखकर सानिया के दिल को कुछ हुआ। अहमद सानिया का घबराया हुआ चेहरा देखकर अंदाज़ा लगा चुका था कि अब दोबारा उसके साथ कोई वाक़या पेश आ गया है। उसने जब सानिया से पूछा कि तुम बिल्कुल ठीक हो तो अहमद की बात सुनकर सानिया ने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया और उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो अब अहमद को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। दिन के वक्त भी एक मजाक की वजह से उसने पूरे घर को परेशान किया था। एक बात का तो सानिया को अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था कि तमाम घर वाले उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और उसका ख्याल रखने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अहमद इतनी लेट उसके कमरे में आने पर उससे मुआज़रत कर रहा था। दरअसल वो सानिया को ये बताने के लिए आया था कि कल वो सानिया को अपने साथ लेकर गाँव जाएगा। अहमद की बात सुनकर सानिया बच्चों की तरह खुश होने लगी। उसे शुरू से ही बाहर घूमने का बहुत शौक़ था। जब से वो यहाँ पर आई थी तब से वो हवेली में उन्हीं लोगों के साथ बातें वगैरह कर रही थी। वो एक बार भी उस हवेली से बाहर नहीं निकले थे। अब वो वक्त आ गया था जब सानिया भी बाहर की दुनिया को देखने लगी थी। और फिर अगले दिन तकरीबन सुबह 10 बजे ही अहमद उसे लेने के लिए आ गया। जब वो अहमद के साथ जा रही थी तो उसकी कज़न सोनिया दूर खड़ी उन लोगों को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। सोनिया का बस नहीं चल रहा था कि वो उस लड़की का काम तमाम कर दे, लेकिन वो बेबस थी। अभी भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। फिर वो वहाँ पर थोड़ी देर खड़ी रही जब उसकी दूसरी कज़न भागती हुई उसके पास आई और कहने लगी, तुम्हें पता चला है कि
مجھے ثانیہ کی ایک کمزوری معلوم ہوئی ہے۔ اس کی بات سن کر سونیا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی اور وہ کہنے لگی، مجھے جلدی سے بتاؤ کیا ہے وہ۔ تب اس نے سونیا کو بتایا کہ ثانیہ کو ابھی یہ نہیں معلوم کہ ہم سب جنات ہیں۔ اسے یہی لگتا ہے کہ ہم سب بھی اس کی طرح آدم زاد ہیں، اسی وجہ سے وہ آرام سے یہاں پر رہ رہی ہے۔ میں خود حیران تھی کہ کیسے کوئی انسان جنات کے درمیان اتنا خوش رہ سکتا ہے، لہٰذا اب ہمیں اسے یہ بتانا ہے کہ وہ جن کے ساتھ رہ رہی ہے وہ اس میں سے ہے ہی نہیں، اور یہ کام مجھے یقین ہے کہ تم اچھے طریقے سے کر لو گی۔ اس کی یہ بات سن کر ثانیہ پراسرار انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی، تم فکر ہی مت کرو۔ جتنی دیر وہ احمد کے ساتھ گاؤں میں گھومتی رہی، اس دوران وہ اپنے چہرے پر لوگوں کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتی رہی۔ احمد کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسے ثانیہ کو یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، کیونکہ جنات کو بھی لے کر بہت سے جنات ایسے تھے جو انسانوں سے نفرت کرتے تھے اور انہیں نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ دوسرے جنات انہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ کچھ جنات کی برادری ہی ایسی تھی، وہ شروع سے ہی شر پسند ہے۔ اچانک ثانیہ کے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ احمد نے دیکھا کہ قریب ہی کھڑا ایک جن ذات ثانیہ کو گھورے جا رہا ہے، اور یہ درد بھی ثانیہ کو اسی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس جن ذات کو دھمکی دی، جس کی وجہ سے وہ جن ذات تھوڑی دیر میں ہی وہاں سے چلا گیا، اور پھر ایک دم سے ثانیہ کے سر درد کو آرام آ گیا۔ یہ دیکھ کر ثانیہ خود بھی حیران ہو گئے تھے۔ تقریباً شام کے وقت وہ دونوں لوٹ کر گھر آئے۔ تب وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے تھے، تب راشدہ بیگم ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کو اکٹھے دیکھ کر راشدہ بیگم خوش ہو گئی، لیکن پھر جلد ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ جیسا وہ سوچ رہی تھی ویسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک جنزاد اور آدمزاد کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ دوسری طرف وہ احمد کے جذبات بھی اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے مستقبل میں کیا ہوگا، لیکن ایک بات کا انہیں اندازہ تھا کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اپنے ساتھ تباہی لائے گا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ ان دنوں میں ثانیہ کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو چکے تھے۔ سونیا جو پہلے سے ہی ثانیہ سے بہت کھنچی رہتی، اس سے بات کرتے ہوئے گریز کرتی، آہستہ آہستہ ثانیہ کے قریب آنے لگی، اور پھر تھوڑی ہی عرصے میں دونوں کی اچھی دوستی ہو گئی۔ ثانیہ اس دوستی پر بہت خوش تھی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید سونیا اس کے ساتھ مخلص ہے، لیکن یہ صرف اس کا وہم تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سونیا صرف اور صرف اسے نقصان پہنچانے کے لیے اس کے قریب ہوئی ہے۔ دوسری طرف احمد بھی ان دونوں کی بڑھتی دوستی پر کافی حیران تھا۔ وہ سونیا کو اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ کس قدر ظالم عورت ہے۔ جس نے اپنی ماں تک کو مار دیا، وہ کیسے کسی اور کے ساتھ مخلص ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ احمد سونیا سے بہت نفرت کرتا تھا۔ سونیا کی حقیقت کے بارے میں صرف احمد کو ہی پتہ تھا۔ اب جب وہ ثانیہ کے قریب ہوئی تو احمد کو ثانیہ کی فکر ہونے لگی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ اب وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ اس لیے اس نے ایک دن ثانیہ کو کہا کہ جتنا زیادہ ہو سکے سونیا سے دور رہے۔ احمد کی بات سن کر ثانیہ برا منا گئی اور کہنے لگی کہ تم تو چاہتے ہی نہیں ہو کہ کوئی میرے ساتھ رہے۔ اس کی یہ بات سن کر احمد نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بات کو لے کر تمہارے دماغ میں کیا آیا ہے، لیکن ایک بات میں تمہیں اچھے طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ سونیا ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بات میں خود کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اسے بچپن سے جانتا ہوں۔ لہٰذا مجھے یہی فکر ہے کہ تم اگر اس کے زیادہ قریب ہوئی تو تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ یہ کہہ کر احمد وہاں سے چلا گیا، جبکہ ثانیہ منہ بنا کر رہ گئی۔ اس کے بعد بھی ثانیہ باز نہ آئی اور سونیا کے ساتھ زیادہ تر وقت گزارنے لگی۔ رات کے وقت کسی کو بھی کسی کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ثانیہ کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا، لیکن پھر ایک دن سونیا نے اسے کہا کہ کیا تم رات کو سارا کے کمرے میں گئی تھی؟ ثانیہ کی یہ بات سن کر وہ مایوس ہو گئی اور کہنے لگی، نہیں، دراصل یہاں پر رات کے وقت کسی کو بھی کسی کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ثانیہ کی یہ بات سن کر سونیا یوں ظاہر کرنے لگی جیسے ثانیہ نے کوئی انوکھی بات کر دی ہو، اور منہ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، ارے تمہیں یہ کس نے کہہ دیا؟ یہاں پر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم جب چاہے کسی کے بھی کمرے میں جا سکتی ہو، بلکہ میں تو کہتی ہوں رات کے وقت ہی کزن کے کمرے میں جانے کا مزہ آتا ہے، کیونکہ اس وقت سب لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بات سن کر ثانیہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی، میں تو شروع سے ہی یہی چاہتی تھی، کیونکہ رات کے وقت مجھے یہاں پر نیند نہیں آتی، ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے،
जो मेरे पूरे वजूद पर तारी हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सोनिया उसकी बात सुनकर चेहरे पर परेशानी के तासुरात लेकर आ गई और कहने लगी, अरे ये सब तो नॉर्मल है, क्योंकि हम लोगों के साथ ऐसा तो होता है। क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता? सानिया उसकी बात सुनकर हैरान रह गई और कहने लगी, क्या मतलब सबके साथ ऐसा होता है? तुम किस बारे में बात कर रही हो? क्या तुम मुझे थोड़ी तफसील बता सकती हो? सोनिया यकदम खामोश हो गई और कहने लगी, लगता है तुम्हें किसी ने इस बारे में नहीं बताया, लिहाजा मैं भी तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकती। लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हें जल्द इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि हम लोगों में कितना फ़र्क है। ये कहकर सोनिया वहाँ से उठकर चली गई, जबकि सानिया पीछे परेशान बैठी रह गई। उसे सोनिया की एक भी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन वो काफ़ी हद तक परेशान हो गई थी। शाम के वक्त जैसे ही अहमद आया, वो अहमद से सवाल करने लगी कि आखिर सोनिया किस बारे में बात कर रही थी। सानिया की बात सुनकर अहमद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे सोनिया से ऐसी ही किसी चीज़ की उम्मीद थी, लिहाजा वो सानिया को कहने लगा कि कोई भी नहीं, तुम इन बातों को दिल पर मत लो। सोनिया एक नफसियाती औरत है, वो ऐसी बातें करती रहती है, लिहाजा बेहतर यही है कि तुम मुझसे दूर रहो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था। अहमद की बात सुनकर सानिया ने अपनी गर्दन शर्मिंदगी से झुका ली, लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था कि वो इस राज से पर्दा हटा कर रहेगी। आखिर उन लोगों में और उसमें क्या फ़र्क था, क्योंकि ये बात पहले भी वो अपनी माँ से भी सुन चुकी थी कि अगर तुमने मज़ीद ज़िद की तो मैं तुम्हें वापस छोड़ाऊँगी। इस तरह की बातें उसके जहन में घूमने लगी। और फिर उसने अहमद को ये नहीं बताया कि वो रात के वक्त अपनी कज़न के कमरे में जाएगी, और ना ही उसे मज़ीद कोई बात बताई थी जो सोनिया ने उससे कही थी। फिर रात के वक्त जब सारे अपने कमरे में आराम कर रहे थे, सानिया अपने कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि अब वो क्या करे, और फिर तेज़ी से कमरे से बाहर निकले ताकि दूसरों के कमरे में जाकर देख सके कि वो रात के वक्त उसे आने से मना करते हैं। और सबसे पहले उसने सारा के कमरे में जाने का फ़ैसला किया। वो सारा के कमरे के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हुई। अभी उसे वहाँ खड़े थोड़ी देर ही हुई थी कि जब उसे अंदर से अजीब आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई जानवर दर्द के मारे कर्रा रहा हो और अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो, या कोई जानवर ज़बा हो रहा हो। ये आवाज़ें सुनकर सानिया का दिल खौफ से धड़कने लगा। उसके दिल में आया कि वो यहीं से वापस मुड़ जाए, लेकिन फिर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने कमरे में जाने का फ़ैसला किया। दरवाज़ा खोलते ही उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसका जिस्म भी खौफ के मारे कांप रहा था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, गहरे अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। वो कमरा अंदर से बहुत बड़ा और वसी था। सानिया ने देखा कि वो एक कमरा नहीं था, बल्कि उसके साथ एक दूसरा कमरा जुड़ा हुआ था। जब उसके बीच से दीवार हटाई गई थी, एक तरफ का हिस्सा बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत था, जबकि दूसरा हिस्सा काफ़ी बोसीदा था। वहाँ पर ईंटें लगाई गई थीं, जबकि ईंटों की जगह से खून जमा हुआ था। ये देखकर सानिया का दिल खौफ से कांपने लगा। वो छोटे छोटे कदम उठाकर आगे बढ़ रही थी, और फिर थोड़े ही फासले पर वो रुक गई। उसकी आंखें खौफ से खुल गईं, क्योंकि सामने एक जानवर पड़ा हुआ था। उस जानवर की गर्दन पर सारा ने अपने दांत जमाए हुए थे और बहुत ही मज़े से उसका खून पी रही थी, जबकि जानवर दर्द से बिलबिला रहा था और ख़ुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। ये मंजर देखकर सानिया पहले तो अपनी आंखों पर उसको यकीन नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि सब बिल्कुल सच है। दूसरी तरफ सारा को सानिया की आमद की खबर नहीं थी। वो इस कदर मगन थी कि उसे पता ही न चला कि कब सानिया उसके कमरे के अंदर दाखिल हुई। वो उस वक्त सिर्फ अपने शिकार का मज़ा ले रही थी, जो उसे बहुत मुश्किल से मिला था। आज जाने कितने अरसे बाद वो एक ताज़ा बकरे का खून पी रही थी। सानिया तेज़ी से वहाँ से भागी। उसकी आंखों से तेज़ी से आंसू बह रहे थे। उसे एहसास हो चुका था कि ये लोग वाकई उसकी तरह नहीं, बल्कि ये तो कोई और ही मखलूक है। फिर उसके जहन में अहमद की बात गूंजने लगी कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगता कि तुम यहाँ जिनजादों के दरमियान खड़ी हो। यानी वो लोग इंसान नहीं थे, वो सानिया जैसे नहीं थे, वो जिन्नात थे। अब तो सानिया को ये भी शक होने लगा कि वो उसे यहाँ पर किसी मकसद के लिए लाए हैं। अगर वो थोड़ी सी और बड़ी हो गई तो उसका भी यही हाल करेंगे। सानिया ने दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया। सारा के कमरे के साथ ही एक और कमरा था, जहाँ से अब एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। सानिया की आंखों से तेज़ी से आंसू बहने लगे। वो अंदर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर दोबारा उस कमरे के अंदर दाखिल हो गई। उस कमरे का हाल भी कुछ ऐसा ही था। अंदर से आधा कमरा बहुत ही खूबसूरत था,
जहाँ पर खूबसूरत टाइलें और फानूस लगे हुए थे, जबकि दूसरा कमरा बहुत ही पुराना और बोसीदा था, जहाँ पर एक बच्ची बंधी हुई थी। सामने ही एक लड़का बैठा हुआ था। उसने हाथ में एक तेज़ धार हथियार उठा रखा था। ये देखकर सानिया को अंदाज़ा हो गया कि वो अब क्या करने वाला है। इससे पहले कि वो उस बच्ची को नुकसान पहुंचाता, सानिया ने एक ज़ोरदार चीख मारी। अरसलान, जो कि अपने शैतानी काम में किसी हद तक कामयाब होने वाला था, चीख की आवाज़ सुनकर यकदम पीछे पलटकर देखा, और जैसे ही सानिया ने अरसलान के चेहरे को देखा, सानिया की तबीयत दोबारा ख़राब होने लगी, क्योंकि अरसलान का चेहरा उस वक्त बहुत खौफनाक था, क्योंकि वो अपने असल रूप में मौजूद था। यहाँ पर सानिया की हिम्मत जवाब दे गई और वो ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी। उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर सारे घर में शोर मच गया। तमाम जिनजात और जिनजातियाँ जो कि अपने कमरों में मौजूद अपने अपने मखसूस कामों में मसरूफ़ थे, तेज़ी से कमरों से बाहर निकल आए और फिर जहाँ से चीखों की आवाज़ें आ रही थी वहाँ चले गए। राशिदा बेगम ने जब अपनी बेटी को यूं चीखते देखा तो वो परेशान हो गई। उन्हें पता चल गया था कि उनकी बेटी को सारी सच्चाई मालूम हो गई है। वो तेज़ी से भागती हुई सानिया के पास गई और उसे सीने से लगाकर तसल्ली देने लगी, जबकि सानिया को किसी सूरत सब्र नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ जब अहमद ने अरसलान की यह हरकत देखी तो वो तैश में आ गया। उसने पहले भी कई बार अरसलान को इस तरह के काम करने से मना किया था, लेकिन आज अरसलान दोबारा छुप कर ये सब कर रहा था, जिसकी वजह से सानिया को ये लगा था कि ये जिन्नात बहुत ही जालिम है और इंसानों को यहाँ पर लाकर उन पर तशद्दुद करते हैं, जबकि वो बच्ची कोई छोटी बच्ची नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत बड़ी और मक्कार जादूगरनी थी, जिसे अरसलान यहाँ पर सबक सिखाने के लिए लाया था। लेकिन जब उस जादूगरनी को ये पता चला कि इस कमरे की तरफ कोई इंसान आ रहा है, तो उसने जल्दी से छोटी बच्ची का रूप धार लिया ताकि वो इस सब झंझट से बच जाए, और वो किसी हद तक कामयाब भी हो गई थी, क्योंकि सब लोग ही आपस में लड़ने लगे थे। सानिया ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रही थी और राशिदा बेगम को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। वो उन्हें मुसलसल यही कह रही थी कि खुदा के लिए मुझे छोड़ दें, मुझे ये तकलीफ़ मत दीजिए। राशिदा बेगम ने जब सानिया के मुंह से ये बात सुनी तो वो दिल बर्दाश्त हो गई और उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन सानिया को किसी सूरत सब्र नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिरी। राशिदा बेगम ने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। आज वो दिन आ ही गया था जब उनकी बेटी को ये हकीकत मालूम हो गई थी, लेकिन ये हकीकत इस कदर बुरे अंदाज में उसे मालूम होगी, इस बारे में किसी ने नहीं सोचा था। उन्हें ये सोच कर भी गुस्सा आ रहा था कि आखिर सानिया को कमरे में जाने की क्या ज़रूरत थी। और फिर थोड़ी देर बाद ये राज भी आश्कार हो गया कि उसको कमरे में भेजने पर मजबूर करने वाली कोई और नहीं बल्कि सोनिया थी। दरअसल दिन के वक्त जब सोनिया सानिया से इस बारे में बात कर रही थी, तब हवेली की नौकरानी ने सुन लिया था और उसने सबको बता दिया था। उसकी बात सुनकर राशिदा बेगम मज़ीद गुस्सा हो गई कि उसने उन्हें दिन के वक्त इस बारे में क्यों नहीं बताया, अब जब पानी सर से ऊपर जा चुका था। सानिया तकरीबन 2 दिन बेहोश रही। वो 2 दिन राशिदा बेगम और अहमद कांटों पर काट रहे थे। सानिया जब भी कुछ देर के लिए होश में आती तो खौफ से दोबारा चिल्लाने लगते, उन लोगों को खुद से दूर होने के लिए कहते। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उसके जिस्म से यूं लग रहा था जैसे आहिस्ता आहिस्ता खून ख़त्म हो रहा हो। उसकी हालत देखकर सभी परेशान थे, क्योंकि अगर उसकी ये हालत ऐसी ही रहती तो कुछ अरसे बाद उसकी रूह ने परवाज़ कर जाना था। और फिर एक दिन सानिया को दोबारा होश आ गया। उस वक्त वो कमरे में बिल्कुल अकेली थी। उसने शुक्र का सांस लिया और फिर बिस्तर से उठने लगी, लेकिन कमज़ोरी की वजह से उठ नहीं पाई। उसने अपने आप पर काबू पाया और दोबारा उठने की कोशिश की ताकि वो छुप कर उस घर से बाहर निकल सके। उसे यही लगता था कि अगर उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और देख लिया तो वो ज़रूर वैसा ही हाल करेंगे जैसा उस बच्ची के साथ कर रहे थे। इसीलिए वो दबे पांव हिम्मत करते हुए घर से बाहर निकल आई। जैसे ही घर से बाहर निकली, गर्म हवा ने उसका इस्तकबाल किया। उस वक्त सूरज शदीद गर्मी बरसा रहा था। उसके जिस्म में तो पहले ही पानी की बहुत कमी थी, लिहाजा उसकी तबीयत दोबारा ख़राब होने लगी। लेकिन उसने अपने आप पर काबू पाने की कोशिश की और चलती रही। वो नहीं जानती थी कि उस वक्त वो अपनी दुनिया में है ही नहीं, बल्कि वो उस वक्त जन्नात की दुनिया में ही मौजूद है। काफ़ी देर चलने के बाद जब उसे इस बात का एहसास हो गया कि वो उस गांव से काफ़ी दूर आ चुकी है, तो उसने शुक्र का सांस लिया। उसकी नज़र सामने एक घर पर पड़ी जो कि कच्ची ईंटों का बना हुआ था, जबकि बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसको देखकर सानिया तेज़ी से उसके पास भागी ताकि वो उसे मदद के लिए कहे, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये बूढ़ी औरत कोई अच्छी औरत नहीं है।
बल्कि ये सबसे मक्कार और जालिम जनजाति है जो कि लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक करती है, ख़ास करके इंसानों के साथ। जो भी उसके हाथ चढ़ता है वो मौत की पनाह मांगता है, लेकिन ये उस वक्त तक उसे मौत के घाट नहीं उतारती जब तक वो उसको अच्छा खासा सबक न सिखा ले। सानिया नहीं जानती थी कि वो नादानी में आकर कितनी बड़ी गलती करने जा रही है। दूसरी तरफ उस जालिम जनजादी ने जैसे ही सानिया की तरफ देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वो काफ़ी अरसे से भूखी थी। चूँकि वो जालिम जनजादी थी और ज़्यादातर इंसानों का शिकार करती थी, इसी वजह से कबीले वालों ने उसको कबीले से निकाल दिया था। वो कबीले से थोड़े ही दूर एक कच्चे मकान में रहने लगी, और जैसे ही वो उसके घर के अंदर दाखिल हुई, जनजादी ने उस पर अपना जादू कर दिया ताकि वो जहाँ भी आई है वहाँ के लोगों को इसके बारे में पता न चल सके और वो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर निकल ना आए। काफ़ी देर वो यूं ही चारपाई पर बैठी रही, लेकिन चूँकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसी वजह से उसे ज़्यादा देर बैठा नहीं गया और खामोशी से चारपाई पर लेट गई। बूढ़ी औरत उसका बहुत ख्याल रख रही थी। जब उसने सानिया की हालत को देखा तो थोड़ी देर के लिए मायूस हो गई, क्योंकि सानिया काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे। अगर वो उस पर कोई तशद्दुद करती तो सानिया जल्द ही मर जाती, और वो सानिया को इतनी जल्दी मरने नहीं देना चाहती थी। दूसरा, सानिया के जिस्म में खून की मिकदार भी बहुत कम थी, लिहाजा पहले उसने फ़ैसला किया कि वो सानिया को सही सेहतमंद बनाएगी और उसके बाद वो अपना काम शुरू करेगी। दूसरी तरफ जनजाद अहमद पूरे गांव में सानिया को ढूंढता फिर रहा था, लेकिन सानिया उसे कहीं नहीं मिल रही थी। अब उसे सानिया की शदीद फ़िक्र होने लगी। उसे यही लग रहा था कि सानिया जंगल में निकल गई है और जंगल में ही वहशी दरिंदों ने उसका शिकार कर लिया है। उसके कबीले का जंगल पूरे कोहकाफ में मशहूर था, क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जालिम दरिंदे मौजूद थे और उनका मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन फिर पता करने के बाद अहमद को मालूम हुआ कि वहाँ पर कोई लड़की गई ही नहीं है। अब अहमद का ध्यान उसी औरत की तरफ गया जिसको उन्होंने कबीले से बाहर निकाला था। अहमद को तो अब यकीन हो गया था कि हो न हो सानिया उसी के पास मौजूद है। फिर वो उस औरत के घर पहुँच गया। औरत उसकी मौजूदगी से नावाकिफ़ थे। वो सानिया की चारपाई के पास बैठी उसे भूखी नज़रों से देखे जा रही थी। जब अहमद घर के अंदर दाखिल हुआ, अहमद को वहाँ पर देखकर वो घबरा गई और तेज़ी से मुआज़रत करने लगी। यूँ अहमद सानिया को वापस ले आया। सानिया को जब दोबारा होश आया तो वो दोबारा ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी और मदद के लिए पुकारने लगी। अहमद ने एक गहरी सांस खारिज की और राशिदा बेगम की तरफ देखा, जो आंखों में आंसू लिए अहमद को ही देख रहे थे। यानी अब वक्त आ गया था जब सानिया को यहाँ से वापस चले जाना था। यानी अब सानिया उन लोगों से जुदा होने जा रही थी। राशिदा बेगम सानिया के पास जाकर बैठी तो सानिया ने उनके हाथ पकड़ लिए और उनकी मिन्नत करते हुए कहने लगी, मेहरबानी करके मुझे यहाँ से जाने दें, मेरा दिल यहाँ पर नहीं लग रहा। न जाने क्यों मुझे आप सब लोगों से बहुत खौफ महसूस हो रहा है, और उस रात जो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके बाद मेरा यहाँ पर रहने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। आप मुझे कहती हैं कि आप मेरी माँ हैं, आपने मेरी परवरिश की है, और माँ तो अपने बच्चों की खुशी चाहती है। मेरी खुशी इसी में है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और अपने जैसे लोगों में जाकर रहूँ। राशिदा बेगम ने गहरी सांस ली और उसे तसल्ली देते हुए कहा, फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें वापस भेज दूँगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारी तबीयत का ठीक होना लाजमी है। अपनी माँ की बात सुनकर सानिया ने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, इसे कुछ नहीं हुआ। आप मेहरबानी करके बस मुझे किसी तरह वापस भेज दें। सानिया सबको ये कह तो रही थी कि उसने वापस जाना है, लेकिन ये बात वो खुद नहीं जानती थी कि वापस इंसानी दुनिया में जाकर वो किसके पास रहेगी, क्योंकि वो किसी को भी नहीं जानती थी। वो छोटी सी थी जब उसके वालिदैन उसे ढेर पर फेंक कर चले गए थे, क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था और ये बेटी थी। लेकिन उसे कचरे के ढेर पर फेंकने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। इससे पहले कि वो उसे वापस लाते, उसे जिनजादी वहाँ से उठा कर ले गई थी, और फिर जिनजादी राशिदा बेगम ही उसकी परवरिश करने लगी। उस सारे अरसे में राशिदा बेगम को यही लगा था कि सानिया उनसे बहुत मोहब्बत करने लगी है, लिहाजा वो कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पर उन्हें गलत फहमी हो गई थी। कोई भी इंसान किसी भी जन्नात के साथ खुश नहीं रह सकता। राशिदा बेगम सानिया की गलत फहमी दूर कर चुकी थी कि वो जालिम जिन्नात हैं। उन्होंने सानिया को बताया कि जिस बच्ची को उसने देखा वो एक जादूगरनी थी, जो उस बच्ची के रूप में आ गई थी ताकि तुम्हें धोखा दे सके।
لیکن ثانیہ کو اب ان کی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف احمد خود مایوس ہو گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب وہ اور ثانیہ ایک ہو جائیں گے، لیکن ثانیہ کی حالت اور اس کی طبیعت دیکھ کر وہ بھی پیچھے ہٹ گیا۔ اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے ثانیہ کے اصل والدین کو ڈھونڈ لیا تھا اور کسی طرح ان کے کانوں میں یہ خبر بھی پہنچا دی کہ ثانیہ زندہ ہے۔ لہٰذا وہ اپنے اصل ماں باپ کے پاس چلی گئی۔ وہ ان کے پاس جا کر بہت خوش ہوئی، لیکن ابھی بھی وہ راشدہ بیگم اور ان جن جادو کو بھول ہی نہیں تھے۔